بسم اللہ الرحمن الرحیم. قضا غیر معصوف علیہ من الورا فتن غرہ فی العیش نظم القصائدی. یہ جو شاعر ہے زندگی ہی میں اپنا مرثیہ کہہ رہا ہے. عام طور سے لوگ کہتے ہیں مرثیہ مرنے کے بعد، یہ خود اپنا کہہ رہا ہے، اپنی زندگی میں کہہ رہا ہے. یعنی گویا وہ انسانوں کی حقیقت کے بارے میں بتانا چاہتا ہے. دیکھو ذرا کچھ ٹن لیجیے ذرا، لینا چاہتا ہے، کہنا یہ چاہتا ہے کہ آج ایک ایسے شخص کا دیہانت ہوا ہے. دیہانت جانتے ہو نا؟ دیہانت ہوا ہے، ڈیتھ ہوئی ہے، کہ جس کی ڈیتھ پر پلیز ویٹ ایک منٹ، ادھر کی بچ گئی. ہاں، تو یہ ہے، کہنا یہ چاہتے ہیں کہ شاعر صاحب کا جس دن انتقال ہوا تو ایک آدمی بھی ایسا معاشرے میں نہیں تھا جو ان کے جانے پر، ان کے انتقال ہونے پر ایک لفظ رنج و غم کا اظہار کرتا. سمجھا آپ نے؟ یہ غیر معصوف کہا ہے، یعنی یہ لائق تعصب نہیں تھے کہ ان پر کچھ رویا جائے، کچھ آنسو بہایا جائے. اور کہتے ہیں کہ یہ جو شاعر صاحب تھے، جو جوان تھے، کہتے ہیں کہ پوری زندگی یہ شاعری کرتے رہے، اور کہتے ہیں کہ یہی شاعری ان کو کھوکھلی وادیوں میں، مکاریوں میں، ان کو غرہ کے معنی دھوکے دینے کے معنی آتے ہیں، ان کو دوڑاتی رہی. یعنی شاعر یہ کہنا چاہتا ہے اپنے بارے میں کہ میں اتنا معمولی قسم کا آدمی تھا کہ میرے جانے پر کسی نے ایک نہ لفظ کہا، نہ ایک قطرہ آنسو بہایا. اور کہتے ہیں کہ وہ اس لیے نہیں بہایا کہ زندگی بھر اپنی شاعری میں مصروف رہا، اور الشعر الفاحش ہوا ینظمہ فی قصائدہ بذلک السبب لا یلتفت ای شخص ای رجل من هذه البیع من هذا الورع. رائٹ؟ ٹھیک ہے نا؟ کہنا یہ چاہتے ہیں اس کے بعد لقد کانا کذابن وکانا منافقن وکانا لئیم الطبع نظر المحامدی. اور یہ جو شاعر صاحب تھے، اس لیے لوگوں نے ان کے جانے پر کنڈولنس نہیں کیا، کنڈولنس میٹنگ نہیں ہوئی. اس کی وجہ یہ تھی کہ بڑے جھوٹے تھے، بڑے جھوٹے تھے. بالکل صحیح کہہ رہا یہ کہ شاعر بالعموم جھوٹا ہوتا ہے، جھوٹی شاعری کرتا ہے، اور کہتے ہیں کہ منافق بھی ہوتا ہے. سمجھا آپ نے؟ اس کی طبیعت میں نفاق بالکل سے بسا ہوا ہوتا ہے، اور طبیعتاً بڑا گھٹیا آدمی تھا، بڑا ہی بدترین قسم کا آدمی تھا. اور جناب عادی ہم تلاش کرنے لگے کہ کہیں کوئی پہلو تعریف کا نکل آئے، لیکن ہمیں کچھ کہیں سے دکھائی نہیں دے رہا تھا. نظر المحامدی، نظیر کہتے ہیں قصیر کے معنی میں آتے ہیں، کچھ بھی نہیں تھا. سمجھا آپ نے؟ وہ کانا خبیث النفس کناس کلہمی، کیا ہے یار، جبانن قلیل الخیر جم الحقائدی. اور یہ جو شاعر صاحب تھے کہ بڑے خبیث تھے، بڑے خبیث تھے. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث میں تھے. سمجھا آپ نے؟ بڑے خبیث تھے. اور جیسے سارے لوگ سے مراد ہے بالعموم، یہ نہیں کہ ہر آدمی، بالعموم لوگوں کو جائزہ لیجیے تو خباثت ان کی طبیعت میں بسی ہوئی ہے.
किसी के बारे में अच्छा सोचते नहीं, लोगों की टांग खींच के लोगों को गिराना चाहते हैं, गिरे हुए लोगों को उठाना नहीं चाहते हैं। और कहते हैं कि बुज़दिल, ये जो शायर साहब थे बिल्कुल बुज़दिल था। बुज़दिल वो होगा जो हक परस्त नहीं होगा, बुज़दिल होगा जनाब अली। हाँ, और कहते हैं कि और जब हम उसकी एक्टिविटीज का, उसकी जिंदगी का जायजा लेते हैं तो कहीं से कोई खैर का पहलू हमें नजर नहीं आता। क़द जा फिल कुरान मन्नाइन लिल खैर, मन्नाइन लिल खैर, ये असल चीज निफाक की पहचान बताई गई है। लेकिन जो मोमिन होता है वो मन्नाइन लिल खैर नहीं होता है। वो हर तरीके से, चाहे उसके घर पे कोई मेहमान आता है, तालिब इल्म आता है, तो उसको इज्जत से बिठाता है, उसको इज्जत देता है। अगर ऐसा वो नहीं करता है तो मन्नाइन लिल खैर में से, माफ कीजिएगा मैं कहना चाहता हूँ आपसे। हाँ, तो और कहना ये चाहता है, उसके बाद जो है कहाँ गया यार, हाँ नहीं, और जमल हकाइदे, और जब अब हम उसके सीनों को चाक करके देखते हैं तो वहां जिस चीज का जमावड़ा है वो हिक़्द का है, कीने का है, हसद का है, सारी बुराइयां वहां पर मुज्तमा है और जमा है। ठीक है, उसके बाद है मल फ़र्क़ अल हिक़्द वल हसद। असल चीज हसद तो देखिए, अगर सिर्फ हासिद होगा, असल चीज एक बुराई आती है तो बुराई को खींचती है। जैसे कुरान में कहा गया है कि इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात, तो इसी का अपोजिट आप समझ लीजिए। तो लेकिन दोनों फर्क है कि हासिद उसे कहते हैं कि जो किसी से जलता हो, किसी को किसी बारे में ये चाहता हो कि अबू सुफियान इसराई साहब के पास इतना अच्छा मकान है तो मेरे पास क्यों नहीं है, तो तुम यार अपना मकान बनाओ यार। लेकिन अबू सुफियान इसराई साहब का मकान पहले गिराएगा उठा को, तब अपना बनाएगा। अल्ताफ अहमद आज़मी साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि वहीउद्दीन खान साहब को जानते हैं ना, मौलाना वहीउद्दीन खान को, ग्रेट पर्सनालिटी among the Muslim ulama's, वहीउद्दीन खान, ज़फ़र इस्लाम खान जिनके बेटे हैं, तो कहते हैं कि वो मुस्तकिल मौलाना मौदूदी के पीछे लगे रहते हैं और उनकी टोपी छीन लेना चाहते हैं। तो वो ये खुद एक टोपी छिलवा लें, उनकी टोपी की चीट रहे बताओ। तो अगर इस तरीके का जज्बा है कि टोपी छीन के तुम अपनी, अब इनका छीन को लगाऊं, अरे मैं भी खरीद लूँ कैसे ही, तो ये अच्छी बात तो नहीं है। तो इसको हसद कहते हैं, राइट, अंडरस्टैंड। और हिक़्द उसे कहते हैं कि हिक़्द कहते हैं हक़दा के किसी चीज को जमने को कहते हैं। तो ऐसी आलाइश उसके सीने में जमी हुई है कि वो किसी के बारे में सही सोचता नहीं, किसी के बारे में अच्छी बात उसके ज़हन में आती ही नहीं, उसे हिक़्द कहते हैं, जो सीने पे जम जाए। अब जैसे देखिए हार्ट अटैक क्यों होता है, जब सारी वो क्या नाम है ब्रेन्स, क्या उसको बोलते हैं, वो ब्लॉक हो जाती है, तभी तो होता है ब्लॉक। तो हिक़्द जो है वो सारे खैर की जो नालियां वो उसको ब्लॉक कर देता है। ये चीज़ है दोनों, राइट आंसर। हाँ, उसके बाद है कि क़द काना मजनूनन तुज़ाहिकुहुल मुना व फी रीक़हा सम्मुस्सलालिश शवारिदी। कहना ये चाहते हैं कि जो शायर साहब है ना, बिल्कुल पागल, क्या है, पागल है। और जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो लोग पागल कहते तो मना करते थे, है कि नहीं। कुरान ने बार बार कहा है, सूरह यासीन में भी है बार बार कि आप मजनून नहीं है, आप पागल नहीं है। तो ये इतना पागल था, इससे कुछ नजर नहीं आता था। और ये पागल किसका था, ख्वाहिशात के पीछे दौड़ने की वजह से पागल हो गया था, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, समझा आपने। तो ख्वाहिशात उसका मजाक उड़ाती थी, कहते पागल हो गए, पागल हो गए, हम लोगों के लिए पागल हो गए, समझा आपने। हंसती थी, मजाक उड़ाती थी। अगर उस पगले शायर को ये पता होता कि जो ख्वाहिशात है ना, कि उनके मुंह में उनके लुआब जो है, थूक जो है, समझा आपने, अगर उसको देखता तो उसमें इतना जहर, वो थूक नहीं है, ख्वाहिशात के जो थूक है क्या है, वो जहर है। और वो जहर बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे जहरीला किस्म का सांप होता है, कि अगर आपको काटा, और बांस सांप तो ऐसे होते कि काटा न भी काटा उन्होंने, अगर आप मारा, सांस लिया और थूक आपके पास चला के मर जाएंगे, आप पढ़िएगा
बास स्नेक ऐसे होते हैं कि अगर उनकी एक छोटी सी कोई उनके थूक की जहर की आपके ऊपर गई, आप खत्म हो जाएंगे. Sir, I studied that 95 or 96% of snake has no हाँ राइट राइट राइट, हाँ वो पॉइजन्स नहीं रखते, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं. लेकिन ऐसे भी हैं जो आपको बता रहा हूँ ना, ऐसे भी हैं. हाँ राइट, अंडरस्टैंड. ठीक, और कहना ये चाहते हैं, ये क्लियर है ना. Yes. उसके बाद कहते Sir, हैं mamana shawarid are शवारिद उसे कहते हैं कि जो भागता है, सलाल जहर को कहते हैं, और शवारिद उस काम के जो हर वक्त चलता रहता है. तशरीद उसे से आता है, समझा आपने. आप सांप नहीं भागता ऐसे देखते नहीं, वो रुकता नहीं है. हाँ, उसको शवारिद कहते हैं. अंडरस्टैंड. हाँ, तो कहना ये चाहते हैं फ़आशा वमा वासाहो फिल आयशे वाहिदू व माता वलम यहफुल बिही गैर वाहिदी. शायद ये कहना चाहता है कि जनाब पूरी जिंदगी भर वो जिया, पूरी जिंदगी उसको मिली, शायर साहब को पूरी जिंदगी मिली, लेकिन जनाब पूरी जिंदगी में एक आदमी ने उसके साथ हमदर्दी दिखाई हो, समझा आपने, कुछ उसको पूछा उछा हो कभी, अरे डॉक्टर साहब कहाँ जा रहे हैं आइए, वो कहते हैं कोई एक आदमी नहीं, कोई एक आदमी भी ऐसा उसके परव्यू में नहीं था. और कहते हैं जब वो मर गया तो एक आदमी ने उसके लिए कंडोलेंस मीटिंग की. वल्लाह महफुल, हफल तो ताबीन जानते हो ना, कंडोलेंस मीटिंग को कहते हैं. एक आदमी ने भी ये कोशिश नहीं की कि उसके लिए चलिए 2-4 आदमी जमा होके जरा उसको याद कर लिया जाए, समझा आपने. वो जाआ इलत दुनिया अला आला रग़म अनफिही मुयार. वजाआ इलत दुनिया आला रग़म अनफिही. कहना ये चाहते हैं शायर साहब कि मैं इस दुनिया में आना नहीं चाहता. अला रग़म अनफिही, मैं इस दुनिया में आना नहीं चाहता था, लेकिन खुद मुझे अल्लाह ताला ने भेजा है, समझा आपने. मैंने मेरी जब अगर मुझसे पूछते कि दुनिया में भेजू तो मैं कतई इनकार कर देता कि मुझे दुनिया में मत भेजिए आप. अला रग़म अनफिही, समझा आपने. कहते हैं कि वो राहा, और उनकी पूरी जिंदगी जो रही है, कहते हैं कि जो ख्वाहिशात जो सांप की तरह हैं, कहते हैं कि उसी की नापसंदीदगियों पर मैं अपनी पूरी जिंदगी उसने गुजारी. शायर साहब, समझा आपने. मैं नहीं आना चाह रहा था, और जब आ गया हूं तो शायर साहब ये कह रहे हैं कि ये जो ख्वाहिशात जहरीली सांप की तरह होती हैं, उनको हासिल करना चाहता था लेकिन हासिल ना कर सका. इन्हीं दुखों में, कुल कहते हैं कि इन्हीं नापसंदीदगियों पर रहते हुए मैंने अपनी पूरी जिंदगी गुजारा है. ठीक है, अंडरस्टैंड. जरा सवाल मत करना, टाइम जरा कम है. हाँ, लेकिन सब वाजे कर रहा हूँ. अरादा खुलूद ज़िक्रे फिल अर्ज़े ज़ल्लतन फ़औरदहुन निस्यानो मुर्रुल मवारिदी. और कहते हैं कि ये शायर साहब थे ना, करना धरना कुछ नहीं है. अब जैसे बहुत से हमारे टीचर्स यूनिवर्सिटी के अंदर है, लिखना पढ़ना कुछ नहीं है, किताब नहीं लिखेंगे, मजमून नहीं लिखेंगे, रातों को जगेंगे नहीं, लेकिन चाहते हैं शोहरत हासिल करें, यूनिवर्सिटी की ये पोस्ट मिल जाए, यूनिवर्सिटी की वो पोस्ट मिल जाए. तो कहते हैं, ये कह रहे हैं कि ये शायर साहब जो चाहते थे कि इस दुनिया में उनको हमेशगी मिले, मतलब जाने जाएं, पहचाने जाएं, तारीख के चैप्टर बन जाएं, लेकिन ज़ल्लतन वो खो के रह गए. कुछ नहीं मिला उनको, कुछ नहीं उनको मिला, समझा आपने. चाहते कुछ थे, बल्कि उल्टा ये हुआ कि निस्यान ने, मतलब कि फूल ने उनको उठाकर वहां लेके डाल दिया जहां की गुजरगाह होती है. अब गुजरगाह की चीजें पड़ी रहती हैं, कोई तवज्जो देता आगे बढ़ जाता उठाकर, समझा आपने. तो कहते हैं कि उठा के पटक दिया, फेंक दिया है, तो उनकी जो ख्वाहिश थी खुलूद ज़िक्र की, वो उनको मिल नहीं सकी. ठीक है, चलो आगे. उसके बाद है वलम यबके ही मुर्रल मवारिद, गुजरगाह के माने में, सब गुजरगाह के माने में. हाँ, तो कहते वलम यबके ही इस्माता इल्ला
अजीरतुन लहा ज़फ़रतुन लौलल लोहा लम तुसाइदी। वो मरे हैं शायर साहब, कहना चाहते हैं जब वो इंतकाल हुआ तो कोई उन पर सीना को भी करने वाला नहीं था, समझा, हाय हाय करने वाला नहीं था। लेकिन ये एक पड़ोसन थी, या आप ये कहिए कि घर में काम करने वाली जो बुआ थी, कहते हैं वो बेचारी कुछ रोई, कुछ आंसू बहाए उसने, लेकिन बहाया कैसे, लहा ज़फ़रतुन, और कुछ वो सिसकियां भी भर रही थी, आहें भी ले रही थी, लेकिन वो इसलिए सिसकियां ले रही थी, इसलिए कुछ आंसू बहा रही थी कि उसको कुछ देते होते थे बेचारे, लौलल लोहा कुछ देते थे कि लो 10 रुपए 5 रुपए, तो अगर वो न देते तो लब तो शायदी, न तो वो आहें भरती और न एक एक कतरा आंसू भरती। कितने हैं यार इसमें, चलो कुछ खत्म कर देता हूँ, खत्म कर दूं, अगर कहो तो खत्म कर देता हूँ। फला दमआ युरवा यौम वल्ला तुराबहु वो कैफा युरवी तिरबहु गैर वाहिदी। कहते ये है कि वल्ला तुराबहु का मतलब जब वो उनका इंतकाल हुआ, जब वो मिट्टी में गए, तो कहते हैं कि उस दिन एक आंसू भी, एक कतरा युरवा सींचा नहीं गया, गिराया नहीं गया, ठीक है, कोई बहाने वाला नहीं था। लेकिन सिर्फ जो है उसके तिरब है, तिरब उसको कहते हैं, हमजोली को कहते हैं, वही अजीरा उससे मुराद है। सिर्फ वही एक ऐसी जात थी कि जिसने उनके लिए कुछ आंसू बहाया है, उसी की तरफ, अजीरा की तरफ बेचारा है, लेकिन इसके अलावा किसी ने एक कतरा आंसू बहाया हो, कहते हैं कि ऐसा कोई आदमी हमें नजर नहीं आया है। फला तंदिबूहो अन्नहु लैस बिल असा हकीकन वला अहलुल हुमूमिल अवाइदी। कहते हैं कि देखो, अगर कुछ लोग रोना भी चाहते हैं तो उनसे ये कह रहा कि प्लीज रो मत, फला तंदिबूहो, तुम मत आहो बुका करो, क्योंकि ये जो आदमी गया है ना, ये इंतहाई नालायक था, इस पर ये गम के लायक ही नहीं कि इस पर गम कहा जाए या कुछ आंसू बहाया जाए। और कहते हैं कि हकीकन वो पीछे से लगा हुआ है, और कहते हैं कि ये जो है उन लोगों में से नहीं है कि जो आवाज कहते हैं, लौटने को कहते हैं कि गमों के लौटाने वाले लोगों में से ये नहीं है कि बाज लोग जो मर जाते हैं तो उनका बार बार जिक्र होता है, तो ये उन लोगों में से नहीं है। इस पर कतन किसी तरीके का एक आंसू न बहाया जाए। और चलो आओ, नहीं दखलू नहीं है, वखलू दीदान ताकुल लहमहु वज़ाका लामरी आता है ना, लामरी आता है, खुतबो खुतबतुन जमा, ये खुतब नहीं, वो नहीं है, ये खतबो है। चलो, खतबु कुल्लिल बवाइदी, बता दूंगा बात में। कहते हैं कि तुम कीड़ों को परेशान मत करो भाई, तुम रो धोगे तो कब्र के जो कीड़े हैं वो सुकून से उसके जिस्म को खा नहीं पाएंगे। तो कहते हैं कि वो उसके खाने पर लग गए हैं, जैसे मुर्दार होता है, जो गिद्ध आते हैं एकदम से लगे रहते हैं, नोचते हैं, तो खुदा के लिए नोचने दो, खाने दो आराम से, चीखो चिल्लाओ मत, समझा आपने। और मैं तुमको कहते हैं कि कसम देके ये बात कहना चाहता हूं कि हर आदमी जो इस दुनिया में आता है, कहते हैं कि उसका हद के माने मुसीबत कहते हैं, कहते हैं कि उसका हाल यही होता है, उसको कीड़े इसी तरीके से खाते हैं कि अगर खा रहे हैं तो उनको खाने दो, उनको डिस्टर्ब मत करो। वला तुज़इजु दीदाना बिन नदबि अन्नहा हुदन लेमन तत्वीहे सूदुल मलाहिदी। और कहते हैं कि तुम इन कीड़ों को अपने चीख के जरिए, आहो भुका के जरिए परेशान मत करो। वो इसलिए कि ये जो डेड बॉडी है
ایک طریقے سے ان کے لیے ہدیہ ہے. سمجھا آپ نے؟ یہ دسترخوان بچھایا گیا ہے تو ان کو سکون سے کھانے دو، اور کہتے ہیں کہ یہ ہدیہ ہے کہ جس شخص کو ان چیزوں کے لیے جس کو سود الملاحدہ قبر سے مراد ہے، جو قبر کے اندھیروں نے جس شخص کو اپنے آغوش میں لیا ہے، وہ شخص ان کیڑوں کے لیے ہدیہ ہے، تو ان کے سکون سے ان کو کھانے دو. آخری شعر ہے، وہ قوم القصو قد فاز بالموت موجعو بلا ربما کان الردا خیرا زامدی. کہنا چاہتے ہیں کہ آج یہ شاعر جو چلا گیا ہے، مر گیا ہے، تو اس کے مرنے پر اور رقص کرتے ہیں. رقص کی محفل، کنڈولنس کی محفل نہیں چلے گی، رقص کی محفل چلے گی. اور اس لیے بہت معنی خیز شعر فلسفیانہ سن لو، بتاتا ہوں. اور کہتے ہیں کہ وہ اس لیے ہم رقص کرنے کی بات کرتے ہیں کہ وہ موت جو اس کے لیے باعث تکلیف تھی، وہ زندگی جو کانٹوں کی سیج پر تھی، مسائل تھے، آج اس مسائل سے بھری ہوئی دنیا سے اسے نجات مل گئی ہے، اسے موت آ گئی ہے. تو بھائی کسی کو نجات ملے تو آپ رقص کریں گے. اور کہتے ہیں کہ یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سی ہلاکتیں ایسی ہوتی ہیں، غدا کے معنی بہت سے اٹیکس، بہت سی مصیبتیں ایسی ہوتی ہیں جو بہتر ترین قسم کی مرہم پٹی شمار کی جاتی ہیں. تو یہ تو مرہم پٹی ہے جو موت نے لگائی ہے. تو مجھے کم سے کم ان بلاؤں سے دنیا سے نجات تو ملی ہے. کہ شاعر نے کہا ہے کہ زندگی باپ کے مانند سزا دیتی تھی. زندگی دنیا، یہ زندگی باپ کے مانند سزا دیتی تھی، مہرباں ماں کی طرح موت بچانے آئی. سمجھا آپ نے؟ اس لیے آپ نے دیکھا بعض لوگ سوسائڈ کر لیتے ہیں، ہمارے مذہب میں نہیں ہے. تو اسی پر آج ختم کرتا ہوں، کل انشاءاللہ دیکھ لیتا ہوں اس کے بعد کیا ہے. بدر نکلتا ہوں، کچھ کام ہے. اللہ